Hello everyone, if you're preparing for regulatory body exams such as RBI Grade B, NABARD Grade A or any other examination and you're worried that how I should prepare for the descriptive section because it holds more than 60% weightage, especially in the RBI Grade B Phase 2 examination. So need not worry guys, in this video I'll help you to understand what content you need to follow, what should be the structure of your descriptive answer, and even I'll discuss with you how to improve your writing speed in next 5 to 7 minutes. So let's begin the discussion. But before I discuss the content, the structure, as well as the hacks to write a good answer, first of all, let's try to understand if we are preparing for an examination which include descriptive section in comparison to the exam where we have an objective section, what should be the difference in our strategy? See, for example, if you're preparing for an exam where only MCQ based questions are asked, अगर उस examination में आपके पास overview है for all the topics covered in the syllabus, that means you are in a position to answer most of the questions, unlike in descriptive examination, because here you need in-depth knowledge of each and every topic which is mentioned in the syllabus. Second is, you can even use elimination method while attempting the MCQ based question. This method, this strategy will not work in the descriptive answer writing, बल्कि वहां पर आपको चाहिए skills to write a good answer. You must have the good writing skills so that you can score pretty well. The next point is keywords. They play a really very important role in case of objective. If you know the keywords, you can easily identify the correct answer, but in case of descriptive paper you need to cover all the topics which are mentioned in the syllabus, because you never know from any of the topic if a descriptive question comes that will be of weightage 10 or maybe 15 marks, especially in the RBI Grade B examination. Lastly, I would say in case of MCQ based questions you need exact data so that you can answer the questions pretty well. But in case of descriptive writing, if you have an overview of a particular report, of a particular data, that will help you to score really very well. And along with this, you need to remember that while covering the reports as well as the schemes, different government publications, you need to analyze them pretty well so that you understand the exact psychology behind presenting that report, how those report understandings and learnings can be utilized in the descriptive answer writing. Last but not the least is you must try to insert facts. I'm not saying exact, but at least approximate facts while writing a descriptive answer. Now, if I say I have 10 golden rules which you must follow if you want to ace your descriptive section, then what are those 10 golden rules? First one, you need to have curiosity the way we have in children. हर बार बच्चा हमसे पूछता है ये क्या वो क्या, बिल्कुल उसी तरह आप भी अपने आप से क्वेश्चन करें। जब भी कभी आप फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की कोई भी टर्म पढ़े तो आपको सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि इस इकोनॉमिक टर्म का, इस फाइनेंशियल टर्म का, इस मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म का एक्चुअली मीनिंग क्या है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, यू नीड टू डू लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ रीडिंग। वो कहते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, डायरेक्टली दे स्टार्ट टाइपिंग द आंसर्स। दैट इज नॉट करेक्ट। अरे भाई, पहले अपना घड़ा तो भरो। फर्स्ट हैव दैट एम्पल ऑफ नॉलेज सो दैट यू कैन राइट प्रीटी वेल। इफ यू हैव दैट वाटर, देन ओनली you can fill or you can fulfill the requirement of that examination. Then in that case you need to do lots and lots of reading, but remember you must read the content which is relevant to your syllabus. Third point is you need to follow a financial newspaper as well as general newspaper articles, editorials, specifically in the two newspapers as we discussed in the previous video. अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की, you will find the link of that video in the comment section below. Don't worry. The next point is RBI website is really very important, because in 2023 as well as in 2024 we have witnessed that many questions related to RBI circulars have been asked in MCQ format. But if you have a good knowledge about the circulars of RBI, then you can insert the facts, the data you have learned from the RBI reports, from the RBI publications, to come up with a good and I would say a healthy answer for the examination. The next point is analyze well. What you need to analyze well? So you need to analyze the reports as well as the publications pretty well. Analysis basically means कि क्या है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का क्या लॉजिक है, इस रिपोर्ट को क्यों प्रेजेंट किया गया, इस रिपोर्ट से समझने को क्या मिल रहा है, इंडियन इकोनॉमी पे इस रिपोर्ट का, इस इवेंट का क्या
इम्पैक्ट है, क्या और पॉलिसी चेंजेस करने होंगे आपकी गवर्नमेंट को सो दैट द रिपोर्ट और आई वुड से द करंट डेटा शुड इंप्रूव विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू द सोशल सिनेरियो ऑफ द कंट्री. Most importantly, you need to extract facts and figures from the report. Facts and figures from the report, मान लो एक रिपोर्ट आई पॉवर्टी पे, तो आप वहां से एक्सट्रैक्ट कर लो पॉवर्टी रिलेटेड डेटा फॉर द पास्ट डिकेड इफ गिवन, फॉर द पास्ट ईयर इफ गिवन. जो भी डेटा रिलेटेड टू पॉवर्टी गिवन है उसे एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पर नोट्स बना के लिख लो, ताकि आपके पास एक डेटा बैंक रेडी हो जाए और उस डेटा बैंक को यूज करके यू कैन write a good answer, or I would say you can insert that data while writing your descriptive answers. Sixth rule I would say, economic survey and budget. 2021 में क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, बजट थे, और वो क्वेश्चन ये था कि discuss 5 important initiatives taken by the government in the budget. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बजट से, which was in descriptive nature. तो economic survey as well as budget, these are the very important documents, not only with respect to your MCQ part of the examination but also for the descriptive part of examination as well. Then you need to cover the schemes thoroughly, and you know that on our platform schemes session is already going on. Manish sir is taking the scheme session ministry by ministry. He is covering all the schemes, so do follow that particular session regularly, and प्लीज मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड. जब भी कभी आप स्कीम पढ़ें तो स्कीम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं. पहली कि वो स्कीम की नोडल एजेंसी कौन है, उसके साथ साथ यू मस्ट नो व्हेन द स्कीम वाज लॉन्च्ड, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, व्हाट इज द टारगेट ग्रुप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, एंड इफ इट इज अ ओल्ड स्कीम देन यू मस्ट हैव द रिजल्ट, दैट मींस द करंट स्टेटस ऑफ दैट स्कीम की आज की डेट में ये स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है. अगला पॉइंट, यू नीड टू रिटेन डेटा, एंड अगर आप किसी भी डेटा को रिटेन करना चाहते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है, 24 आवर्स में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो, देन रिवाइज द सेम इन 7 days, देन रिवाइज द सेम कंटेंट इन 20 days अगेन. अगर आप कंटेंट को 24 घंटे 7 दिन और 28 दिन 3 बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन, यू आर सुपर डुपर रेडी फॉर द एग्जाम. और बहुत सारे एरियाज पे यू नीड टू यूज द कॉमन सेंस एज इन आपने पॉवर्टी का डेटा 2023-24 का भी पढ़ा, 2022-23 का भी पढ़ा, तो ऑब्वियसली 2023-24 डेटा इज मोर रिलेवेंट, मोर इंपॉर्टेंट. रिटेन दैट. 2022-23 के डेटा को आप इग्नोर कर सकते हैं. दैट इज द कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन. यू नीड टू यूज इट इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. स्पेशली यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द रियल लाइफ सिचुएशन. इफ आई से इन केस ऑफ मैनेजमेंट, अगर लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन है, गिव अ प्रैक्टिकल आंसर ऑफ अ लीडर, मेंशन अबाउट अ पर्टिकुलर लीडर इन द कंट्री सो दैट you can give relevancy to the model, to the management question, whatever you are writing down. Last but not the least is latest trends and prevailing economic social problems. For example, in today's scenario, cyber security is a big problem, digital fraud is a big problem, then I would say microfinance is a big problem, the loan requirement or the credit requirement by the MSMEs is again a big problem. So these are something which are in trend, which are in news. तो मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेंड की बात बताऊं तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मर्जर ऑफ दी आरआरबीज. तो आरआरबीज मैं कहूंगा ट्रेंड में, अगर आरआरबी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है तो यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या सोर्सेज आपको फॉलो करनी है और आपकी स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजी विच यू वर फॉलोइंग फॉर योर एमसीक्यू एग्जामिनेशन. डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखे, एक कोई स्ट्रक्चर बना के देखे किसी क्वेश्चन का, ताकि हम बेटर फॉर्मेट पर हमारे इस सेशन को समझ सकें. तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत प्लेन क्वेश्चन है. अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो मींस इट्स अ बोनस फॉर यू. लेकिन अब जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल स्टेप्स यू नीड टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव आंसर. क्वेश्चन को पढ़ा, व्हाट डू यू मीन बाय एनपीए? डू यू अग्री दैट देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द स्टॉक ऑफ एनपीएस? समझ आया? अब ऐसे क्वेश्चन को शुरू कैसे करना, देखो. अगर हम मान के चलें कि ये क्वेश्चन 15 मार्कर के फॉर्मेट में पूछा गया, तो हमें पता है कि हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्कर, 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्कर, एंड फॉर टोटल वी हैव 90 मिनट्स. अगर हमारे पास टोटल 90 मिनट्स है तो 15 मार्कर क्वेश्चन को आप अलॉट कीजिए 25 मिनट्स. 25 प्लस 25 50, 10 मार्कर क्वेश्चन को 20 मिनट्स, 20 प्लस 20 40, तो 90 मिनट्स हो गए. ये जो 25 मिनट्स है ना, इन 25 मिनट्स में पहले 5 मिनट्स, first 5 minutes you should use
to write a rough structure of this question कि मैं अपने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मेंशन करूंगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट और आई विल ओपन दिस विद डेफिनेशन कि भैया क्या होता है एनपीए, एनपीए की सब कैटेगरीज क्या है, कैसे एनपीए को डिफाइन किया जाता है, व्हाट आर द निटिग्रिटीज रिलेटेड टू एनपीए। तो आपने डेफिनेशन से स्टार्ट किया। सेकंड पार्ट आपका जो होगा विच वी कॉल इट एज आफ्टर इंट्रो, दैट इज द मेन बॉडी। अब मेन बॉडी में हमने क्या लिखना है, डू यू अग्री दैट देयर इज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द स्टॉक ऑफ एनपीए? यस सर, वी अग्री। लेकिन आपके यस लिखने से बात नहीं बनेगी, उसमें आपको डेटा देना होगा, डेटा ऑफ आरबीआई रिपोर्ट्स, आरबीआई पब्लिकेशंस जिसमें आरबीआई ने डिस्कस किया है रिगार्डिंग दी एनपीए डेटास ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो उस डेटा को मेंशन कीजिए और मेंशन करने के बाद कहिए यस, NPA is falling down in India. This is the, I would say currently we have 12, 13 years low NPA in the country as per the RBI so and so report. But next point is why NPA is decreasing in the country, you should mention that. तो उसके बाद जैसे ही आपने yes कहा, एनपीए का डेटा दिया, अब यहां पर आप कुछ पॉइंटर्स लेकर आएंगे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय आरबीआई, बाय द बैंक्स इन द पास्ट इन ऑर्डर टू फाइट, इन ऑर्डर टू स्टैंड स्ट्रांग अगेंस्ट एनपीए। देखो जब भी कभी एनपीए की बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, दो चीजें होती हैं, एक है आपका प्रिकॉशन, दूसरा क्योर। तो प्रिकॉशन रिलेटेड मेजर्स जैसे कि आपका अगर मैं कहूं क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रेटिंग रिलेटेड जो निटिग्रिटीज है वो आप मेंशन कर सकते हो, और क्योर के केस में आप मेंशन कर सकते हैं एआरसी के बारे में। तो इन दिस मैनर यू हैव टू मेंशन द इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, आरबीआई एज वेल एज बैंक्स। अब आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन वाला जो पार्ट है उसमें आपको बताना है करंट सिनेरियो। करंट में एनपीए ऑल टाइम लो है, दैट इज गुड, बट एज पर द करंट सिनेरियो इट इज एक्सपेक्टेड दैट द एनपीए ऑफ द नेशन मे इंक्रीज इन द नियर फ्यूचर एज पर सो एंड सो रिपोर्ट, एंड इन ऑर्डर टू काउंटर द impact, in order to counter the risk of increase in NP in the near future, in near future some of the steps are need to be taken by the government, और वो steps आप यहाँ पर mention कर सकते हैं। Obviously I am not discussing this question, मेरा पॉइंट था इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करना नहीं, मेरा पॉइंट था आपको स्ट्रक्चर बनाना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन जिसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या है, एनपीए, आपने एनपीए को इंट्रोड्यूस किया, देन यू राइट द मेन बॉडी जो आपके क्वेश्चन का मेन एजेंडा, और कंक्लूजन में यू विल कम अप विद वेज फॉरवर्ड की आगे आने वाले समय में क्या होगा, उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या चीजें बदलनी होंगी। उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन के बाद काफी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आएगा तो उसे कैसे प्रिपेयर करना। तो 5 मिनट में आपने क्या किया, ये सारा स्ट्रक्चर रफ में अपने पास लिखा, और जैसे ही आपने स्ट्रक्चर रफ में लिखा उसके बाद अगले 20 मिनट में यू हैव टू टाइप द आंसर। ट्रस्ट मी वन थिंग गाइस, जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे ना, देन डोंट थिंक अगेन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कंफ्यूज होंगे। जो आप स्ट्रक्चर बना चुके हैं उसी को फॉलो कीजिए, 20 मिनट में उसे डिलीवर कीजिए। यूज सिंपल इंग्लिश, try to avoid grammar as well as spelling errors, and try to insert as much facts you can, that is RBI data here or the future expectations of NPA. अगर आप यहाँ पे ये data, ये facts को add करते हैं, you are going to score pretty well with respect to this particular question. If you have enjoyed the discussion, do reply in the comment section, and if you want me to come up with a descriptive answer, that means a sample answer for the same question, do type in the comment section itself. I will be sharing a video on it, as well as I'll share the sample answer for the same question, ताकि आपको एक platform मिले to start with कि कैसे descriptive writing को start करना है. So that will be all from my side. We'll catch you in the next session. Good luck. God bless you all.